Yeah.
اے خدا، تیرے بیٹے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دے کر
نئے اور اپنی بھید کو مشکل بنیادوں پر قائم کیا۔ آپ نے رحم و کرم سے ہمیں مقدس بنا اور ہمیشہ ہماری حمایت کر، مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے آمین۔ گیت کے سبب سے چھیدا گیا۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ 52 باب 13 آیت سے لے کر 53 باب کی 12 آیت تک۔ دیکھو تیرا خادم برومند ہوگا، وہ سرفراز اور نہایت بلند ہوگا، جس طرح بٹیرے دیکھ کر اس سے دنگ ہو گئے، کیونکہ اس کا چہرہ انسان کے چہرے سے اور اس کی صورت بنی و انسان کی صورت سے زیادہ معیوب ہو گئی۔ اسی طرح بتیری قومیں اس کو دیکھ کر تعجب کریں گی اور بادشاہ اس کے سامنے منہ بند کریں گے، کیونکہ جو کچھ انہیں بتایا نہ گیا تھا وہ اسے دیکھیں گے، اور جو کچھ انہوں نے نہ سنا تھا وہ اس پر نظر کریں گے۔ جو ہم نے سنا اس کا یقین کس نے کیا ہے، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا ہے؟ وہ اس کے آگے کومپل کی طرح پھوٹ نکلا، خشک زمین سے جڑ کی مانی۔ اس کی کچھ صورت نہیں، کچھ حشمت نہیں کہ ہم اس کا لحاظ کریں، اس کی کچھ شکل نہیں کہ ہم اس کی مشتاق ہوں۔ حقیر اور آدمیوں سے مطروب، مرد غمناک اور بیماریوں کا آشنا، ایسے شخص کی مانند جس سے لوگ منہ موڑتے ہیں۔ وہ حقیر تھا اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ یقیناً اس نے ہماری ہی بیماریاں اٹھائیں، ہمارے ہی غم اس پر لدے ہوئے تھے، حالانکہ ہم اسے مبروز سمجھے اور خدا کی طرف سے مارا ہوا اور ذلیل۔ تو بھی وہ ہماری ہی خطاؤں کے سبب سے زخمی ہوا اور ہماری ہی بدیوں کی خاطر کچلا گیا۔ ہماری سلامتی کی تدبیر اس پر تھی، اور اسی کے کوڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدی پر اس پر لا دی۔ اس پر ظلم کیا گیا، پر وہ فروتن رہا اور اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ ذبح ہونے والی بھیڑ کی مانند اور بدا کی مانند یال اترنے والوں کے سامنے خاموش رہا اور اپنا منہ نہ کھولا۔ گرفتار کرنے اور فتویٰ دینے کے بعد وہ اسے لے گئے، اس کا انجام کون بیان کرے گا؟ وہ عرض زندگان سے کاٹا گیا اور اپنی امت کی سرکشی کے سبب سے قتل کیا گیا، اور انہوں نے شریروں کے سامنے اسے دفنایا اور دولت مند کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا۔ اگرچہ اس نے کبھی ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں فریب نہ پایا گیا، تو بھی خداوند کو پسند آیا کہ اس کو بیماریوں سے کچلے۔ یقیناً اس نے اپنے آپ کو خطا کا ذبیحہ کیا۔ وہ ایسی نسل دیکھے گا جس کا ایام دراز ہوں گے، اور خداوند کا ارادہ اس کے ہاتھ سے کامیاب ہوگا۔ وہ اپنی جان کے دکھ کے بعد نور دیکھے گا، وہ اپنے عرفان سے آسودہ ہوگا۔ میرا صادق خادم بٹیروں کو صادق ٹھہرائے گا اور وہ ان کی بدیوں کو اٹھا لے گا۔ اس لیے میں بٹیروں کو اس کا حصہ کر دوں گا
اور بے شمار لوگ اس کی غنیمت ہوں گے، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے حوالے کر دی اور وہ بدکرداروں کے ساتھ شمار کیا گیا۔ بس اس نے بطیروں کے گناہ اٹھا لیے اور وہ بدکرداروں کا شفیع ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔
दोबारा से उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी और अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी नजात का बाइस ठहरा। ये दोबारा दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत इब्रानियों के नाम, चौथा बाब 14वीं ता 16वीं आयत और 5वां बाब 7वीं ता 9वीं आयत। ऐ भाइयों, जब हमारा एक ऐसा अजीम काहने आज़म है यानी यस्सु इब्ने खुदा जो अखलाक से गुजर गया हुआ है, आओ हम अपने इकरार पर साबित कदम रहें, क्योंकि हमारा काहने आज़म ऐसा नहीं जो हमारी कमज़ोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि जो गुनाह के सिवा सब बातों में हमारी मानी आजमाया गया। बस आओ हम तवक्का के साथ फजल के तख्त के पास जाएं ताकि रहम हासिल करें और ज़रूरत के वक्त की मदद के लिए फजल हासिल करें। उसने अपनी बशरियत के अयाम में ज़ोर से पुकार कर और आंसू बहा कर उसी के आगे दुआएं और मिन्नतें की जो उसे मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी सुनी गई। और अगरचा बेटा था तो भी उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी और तकमील तक पहुंचकर अपने सब फरमाबरदारों के लिए अपनी निजात का बाइस ठहरा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਾ ਮਾਈ। ਕਰ ਲਓ ਕਰ ਲਓ। हमारे खुदा यीशु मसीह की सोबतों का तज़किरा मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील के मुताबिक। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों के साथ वादी कदरून के पार गया, जहाँ एक बाग था। वो अपने शागिर्दों समेत उसमें दाखिल हुआ और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी वो जगह जानता था, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शागिर्दों के साथ वहाँ जाया करता था। पास यहूदा सिपाहियों का एक गिरोह और सरदार काहिनों और फरीसियों से प्यादे लेकर चरागों और मशलों और हथियारों के साथ वहाँ आया। यीशु वो सब कुछ जानते हुए जो उस पर वाक़या होने को था आगे बढ़ा और उनसे कहा, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसे जवाब दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। और उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। और जो ही उसने उनसे कहा कि मैं ही हूँ, तो वो पीछे हटकर ज़मीन पर गिर पड़े। तब उसने उनसे फिर पूछा, तुम किसे ढूंढते हो? वो बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कह दिया है, मैं ही हूँ। बस अगर तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए हुआ ताकि वो कलाम पूरा हो जो उसने कहा था कि जो तूने मुझे दिए हैं उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाई और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस गुलाम का नाम मुल्कस था। मगर यीशु ने पतरस से कहा, तलवार म्यान में कर। क्या मैं वो प्याला ना पीऊँ जो मेरे बाप ने मुझे दिया है? तब सिपाहियों और सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने मिलकर यीशु को पकड़ा और उसे बांधा और पहले उसे हनान के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के काहिन आज़म क्याफा का ससुर था। ये वही क्याफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, कौम के बदले एक आदमी का मरना रवा है। मगर शमौन पतरस और एक और शागिर्द भी यीशु के पीछे हो लिए, और उस शागिर्द और काहिन आज़म में जान पहचान थी और यीशु के साथ काहिन आज़म के शहर में गया। लेकिन पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा शागिर्द जो काहिन आज़म से जान पहचान रखता था बाहर निकला और दरबान औरत से कहकर पतरस को अंदर ले गया। तब उस दरबान लौंडी ने पतरस से कहा, क्या तू भी उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। गुलाम और प्यादे झाड़े के सबब से कोयलों की आग सुलगा कर खड़े हुए तापते थे और पतरस उसके साथ खड़ा ताप रहा था। काहिन आज़म ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत सवाल किया। यीशु ने उसे जवाब दिया, मैंने अलानिया दुनिया से बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में तालीम दी है, जहाँ सारे यहूदी जमा होते हैं, और पोशीदगी में कुछ नहीं कहा। तो मुझसे क्यों पूछता है? उनसे पूछ जिन्होंने मुझसे सुना है कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये बातें कहीं तो इस पर प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को तमांचा मारकर कहा, तू काहिन आज़म को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने जवाब दिया,
अगर मैंने गलत कहा है तो उस गलती पर गवाही दे, लेकिन अगर ठीक कहा है तो तू मुझे क्यों मारता है? हनान ने उसे बंधा हुआ क्याफा काहिने आज़म के पास भेज दिया, और शमौन पतरस खड़ा ताप रहा था। बस उससे कहा गया, क्या तू उसके शागिर्दों में से नहीं? उसने इनकार किया और कहा, मैं नहीं हूँ। फिर काहिने आज़म के गुलामों में से एक ने, जो उस शख्स का रिश्तेदार था जिसका कान पतरस ने उड़ा दिया था, कहा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बाग में नहीं देखा? तब पतरस ने फिर इनकार किया और फौरन मुर्ग ने बांध दी। तब यीशु को क्याफा के पास से कला में ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद कला में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पतरस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा, अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक उस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमको रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यीशु की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर कले में दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तो ये बात आप ही कहता है या फिर औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही कौम और सरदार काहनों ने तुझको मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई करते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं है। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूँ कि हक की गवाही दूँ। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज़ सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसा के मौका पर तुम्हारी खातर एक आदमी छोड़ दिया करता हूँ। बस क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूँ? उन सब ने चिल्लाकर फिर कहा, उसको नहीं बल्कि बराबा को। और बराबा एक डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और उसे अर्गवानी पोशाक पहनाई और उसके पास आकर कहते रहे, ऐ यहूदियों के बादशाह सलाम। और उन्होंने उसे तमांचे मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर जाकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास बाहर ले आया हूँ ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता। बस यीशु कांटों का ताज रखे और अर्गवानी पोशाक पहने बाहर आया। और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये आदमी। जब सरदार काहिनों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्ला कर कहा, सलीब दे, सलीब। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और सलीब दो, क्योंकि मैं इसमें कुछ कसूर नहीं पाता। यहूदियों ने उसे जवाब दिया, हमारी एक शरअ है और उस शरअ के मुताबिक ये कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया है। जब पिलातुस ने यह बात सुनी
तो और भी डर गया और किले में अंदर आकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? मगर यीशु ने उसे कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं? क्या तू नहीं जानता कि मुझे अख्तियार है कि तुझे छोड़ दूं और ये अख्तियार भी है कि तुझे सलीब दे दूं? यीशु ने जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो मुझ पर तेरा कुछ इख्तियार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हवाले किया है वो ज़्यादा कसूरवार है। इस पर पिलातुस कोशिश करने लगा कि उसे छोड़ दे, मगर यहूदी यूं कहकर चलाते रहे, अगर तू इस शख्स को छोड़े देता है तो तू कैसर का खैर ख्वाह नहीं। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर बाहर आया और उस मुकाम जो फर्श मुकल्लम या इब्रानी में जबातन कहलाता है, मसनद अदालत पर बैठा। ये फसा का तहैया था, तकरीबन 6 घंटा, और उसने यहूदियों से कहा, देखो अपना बादशाह। मगर वो चिल्लाए, ले जा इसे सलीब दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को सलीब दूं? सरदार काहिनों ने जवाब दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। तब उसने उनको हवाले कर दिया और उसे सलीब दी जाए। पास वो यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब उठाए हुए उस मुकाम तक बाहर गया जो खोपड़ी की जगह कहलाता है और जिसे इब्रानी में जुंजता कहते हैं, और वहाँ उन्होंने सलीब दी और उसके साथ 2 और को भी, एक को इस तरफ और एक को उस तरफ, और यीशु को बीच में। और पिलातुस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगवा दिया। उसमें लिखा था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। इस किताबा को बहुत से यहूदियों ने पढ़ा, इसलिए कि वो मुकाम जहाँ यीशु मसलूब हुआ था शहर के नज़दीक था, और वो इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा गया था। पास यहूदियों के सरदार काहिनों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का बादशाह ना लिख, बल्कि ये कि उसने कहा था कि मैं यहूदियों का बादशाह हूँ। पिलातुस ने जवाब दिया, मैंने जो लिखा सो लिखा। जब सिपाही यीशु को मसलूब कर चुके तो उन्होंने उसके कपड़े लिए, जिनको उन्होंने 4 हिस्सा किया, हर सिपाही के लिए 1 हिस्सा, और चोगा भी लिया। ये चोगा बिन सिला सरासर बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ें, बल्कि इस पर पूरा डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो कहता है, तो मेरे कपड़े आपस में बांटते और मेरे लिबास पर पूरा डालते हैं। 5 सिपाहियों ने ऐसा ही किया, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। और उसी वक्त वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। और उसके बाद यीशु ने ये जानते हुए कि अब सब बातें तमाम हो चुकी हैं ताकि नविश्ता पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में भिगोकर जूफा की लकड़ी पर रखा और उसके मुंह से लगाया। पास यीशु ने जब सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। क्योंकि
चूँकि तहैया था, यहूदियों ने पिलातुस से अर्ज़ की, उनकी टांगें तोड़ दी जाएं और लाशें उतार ली जाएं ताकि सबत को सलीब पर ना रहें। सबत का वो दिन खास था, इसलिए सिपाहियों ने पहले आकर टांगें तोड़ी, फिर दूसरे की जो उसके साथ मसलूब हुआ था। लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है, तो उसकी टांगें ना तोड़ी, मगर सिपाहियों में से एक ने भाले से उसकी पसली छेदी और फिर खून और पानी बह निकला। और जिसने ये देखा उसने ये गवाही दी, और उसकी गवाही सच्ची है, और वो जानता है कि सच कहता है, ताकि तुम भी ईमान लाओ। ये बातें इसलिए हुई ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि उसकी एक हड्डी भी तोड़ी ना जाएगी। फिर एक नविश्ता कहता है कि वो उस पर नज़र करेंगे जिसे उन्होंने छेदा है। बाद यूसुफ रामती, जो यीशु का शागिर्द था, लेकिन यहूदियों के डर से खुफिया तौर पर पिलातुस से इजाज़त तलब की कि यीशु की लाश को ले जाए, और पिलातुस ने इजाज़त दे दी। बस वो आकर उसकी लाश ले गया, और निकोदेमुस भी आया, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, और 50 सेर के करीब मूर और ऊँट मिला हुआ लाया। फिर उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे कतानी कपड़े में खुशबुइयों के साथ कफनाया, जिस तरह के दफन में यहूदियों का दस्तूर था। और वहाँ जिस जगह उसे सलीब दी गई थी, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई रखा ना गया था। बस चूँकि ये कब्र नज़दीक थी, उन्होंने यहूदियों के तहैया के सबब से यीशु को वहीं रख दिया। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी सारी खताएं मुआफ़ की जाएं। हमें खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, आज हम पाक हफ्ते की 3 रोज़ा इबादतों में से दूसरे दिन में दाखिल हो गए हैं। आज पाक और मुक़द्दस जुमे का दिन है। आज की इबादत में मसीह खुदावंद की पाक सलीब की अलामत पूरी तरह छाई हुई है। आज अगर ये कहा जाए कि पाक सलीब की सालगिरह का दिन है, तो ये भी गलत और मयूब नहीं है। आज पूरी दुनिया के कैथोलिक मसीही बिलखसूस आज की इबादत में, आज के इस दिन के मौका पर अपनी सारी तवज्जो, ध्यान और दिलचस्पी मसीह खुदावंद की सलीब पर लगाते हैं। सलीब की दास्तान बड़ी पुरानी है। सबसे पहले गालबन 519 साल कबल अज़ मसीह दारा अव्वल, जो उस वक्त फारस का जो मौजूदा ईरान है उसका बादशाह था, और उसने उस वक्त उन बागियों को, सियासी मुखालफों को एक ही वक्त में 3000 लोगों को मसलूब किया था। ये छोटी बात नहीं है। उसके बाद 88 साल कबल अज़ मसीह यहूदी कहने आज़म और बादशाह सिकंदर ने इसी वजह से, यानी बागियों को, मुखालफों को एक ही वक्त में 800 लोगों को मसलूब किया था।
सलीब के इस्तेमाल का रवाज और रवायत सबसे पहले फारस में कायम हुई थी। उसके बाद यूनानियों ने भी सलीब को कसरत से इस्तेमाल किया। उसके बाद रोमियों ने भी सलीब को इस्तेमाल किया और ये डाकुओं को, लुटेरों को, बागियों को दी जाती थी और ये जिल्लत की मौत थी। उस वक्त के रवाज के मुताबिक मुकाम तसलीब पर, जहाँ पर उस शख्स को जिसको मसलूब होना होता था, अपने सलीब उठाकर मुकाम तसलीब पर जाना होता था और वहाँ सलीब का एक हिस्सा पहले से गाड़ दिया जाता था और मसलूब जिसको किया जाता है वो अपनी सलीब का दूसरा हिस्सा खुद उठाकर वहाँ जाता है। यसू ने भी ये किया। मसलूब करने से पहले उसको बरहना किया जाता था, उसके कपड़े उतारे जाते थे। यसू के भी कपड़े उतारे गए, उसको बरहना किया गया। फिर तज़लील में, ज़िल्लत में, रुसवाई में इजाफा करने के लिए मजाक उड़ाया जाता था, ताने दिए जाते थे, तशद्दुद किया जाता था, मुंह पर थूका जाता था और यसू के साथ भी ये हुआ। यसू भी तशद्दुद की, बेइज्जती की मुख्तलिफ हालतों से गुजरा, लेकिन वो अपने बाप की वफादारी में कायम रहता है। मसीह खुदावंद का मसलूब होना कुल नस्ल इंसानी की बका के लिए है, मुआफ़ी के लिए है और नई ज़िंदगी के लिए है। सलीब एक अमली जद्दोजहद है। मसीह खुदावंद अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलते हुए उसकी ताबेदारी में, उसकी वफादारी में अपनी खुद मुख्तारी और मुकम्मल आज़ादी के साथ अपने आप को पेश करता है, कुर्बान होता है ताकि वो अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा करे। मसीह खुदावंद ने अनाजील में बहुत दफ़ा ये पेशन गोई की है। कई अनाजील में 3 पेशन गोइयाँ मिलती हैं यके बाद दीगरे कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, गैर कौमों के हवाले दिया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो 3 दिन के बाद जी उठेगा। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में 10वें बाब में मसीह खुदावंद ने कहा कि मेरी जान कोई मुझसे छीनता नहीं है, मुझे अपनी जान को देने का भी इख्तियार है और वापस ले लेने का भी इख्तियार है। फिर हम मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में गालिबन 3 बाब में मसीह खुदावंद ने वो अलामत जो उस वक्त जब बनी इसराइल बियाबानी शहर में थे, उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ और हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की और खुदावंद को उनकी ये बात पसंद नहीं आई और खुदा ने उनकी तरबियत करने के लिए, उनको सुधारने के लिए, उनको सिखाने के लिए आतिशी सांपों को भेजा और बहुत सारे लोग आतिशी सांपों के डसने की वजह से मर जाते हैं और दूसरे फिर हज़रत मूसा से रजू करते हैं और गुजारिश करते हैं, अपने किए पर नदामत भी महसूस करते हैं और कहते हैं कि खुदा से दुआ कर हमारी जान इन सांपों से छूट जाए। तो खुदा उधर फिर एक निशान देता है, हज़रत मूसा से कहता है कि पीतल का एक सांप बना कर बल्ले पर उसको ऊंचा कर
اور جو سانپ کا ڈھسا ہوا اس پر نظر کرے گا تو یقینی طور پر وہ بچ جائے گا۔ اور مسیح خداوند مقدس یوحنا کی انجیل 3 باب میں اس حوالے کو خود اپنے حق میں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی رہے۔ وہ پیتل کے سانپ پر نظر کرنا ضروری ہے اور مصلوب یسوع پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یسوع نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت آپ نے سنی ہے اس میں اشعیاء نبی مرد غمناک کی بات کرتا ہے، اور وہ نبوت کے طور پر کہتا بھی ہے کہ ہماری ہی بدیاں، ہماری ہی خطائیں، ہمارے ہی گناہ اس پر لدے ہوئے تھے، اس کے ٹکڑے کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ تو دیکھیں کلموں کی جب ہم بات کر رہے ہیں، غالباً 5واں کلمہ ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے، جب مسیح خداوند کہتا ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو ایک پروٹسٹنٹ تھیولوجین ہے، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب مسیح خداوند کو یہ احساس ہوا اور جب مسیح خداوند نے یہ پکارا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، وجہ یہی تھی کہ یسوع پر ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری تقصیریں جو اس کے کندھے پر تھیں وہی وجہ بنتی ہیں۔ کچھ وقت کے لیے جو یسوع کو احساس ہوا کہ میری زندگی سے خدا جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ صلیب عملی جدوجہد کا نام ہے۔ الہیات کا ایک استاد ہے لیونارڈو بوف، وہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جیسے یسوع لکڑ کے تختے پر اس کو لٹکایا گیا، مصلوب کیا گیا، وہ یہ بیان کرتا ہے کہ صلیبوں کی مختلف شکلیں ہیں، ہر وہ قانون، ہر وہ ضابطہ، ہر وہ عمل جس سے انسان کی زندگی کم ہو جائے، سکڑ جائے، مشکل ہو جائے جینا، وہ صلیب ہی ہے۔ اور پولس رسول اپنے خطوں میں یہ بیان کرتا ہے کہ مسیح خداوند کی جو صلیب ہے ہمارا اس سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہرا رشتہ ہے۔ اور جیسے بوف نے کہا کہ مختلف شکلیں ہیں صلیبوں کی، تو پولس رسول بھی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ یہ ہے پولس رسول کا خط ہے 8واں باب، رومیوں کے نام خط ہے، 8ویں باب میں ہم دیکھ سکتے ہیں یہ جو مختلف شکلیں ہیں صلیبوں کی، یہاں پر لکھا ہے بس کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا، مصیبت یا تنگی یا ظلم یا قحط یا عریانی یا خطرہ یا تلوار، چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تو ہر وقت تیری خاطر جان سے مارے جاتے ہیں اور گویا ذبح ہونے والی بھیڑیں سمجھے جاتے ہیں، بلکہ ہم ان سب صورتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی شاندار فتح پاتے ہیں، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ نہ موت، نہ زندگی، نہ رشتے، نہ حکومتیں، نہ حال، نہ مستقبل، نہ قدرتیں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق خدا کی محبت سے، ہمارے خدا یسوع مسیح سے ہم کو جدا کر سکے۔ تو دیکھیں اس نے کتنی شکلیں پیش کی ہیں
सलीबों की, तशद्दुद की, जुल्म की, जबर की, ज़्यादती की। लेकिन पौलुस रसूल का ईमान पुख्ता है, यकीन पुख्ता है कि कोई भी चीज़ मुझको रसूल होने के नाते से यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। और वो एक बार नहीं बल्कि करंथियों के खत में वो 2 बार इस बात को बयान करता है कि कोई भी चीज़ हमको मसीह की मोहब्बत से अलहदा और जुदा नहीं कर सकती। 11वां बाब है, दूसरा खत करंथियों के नाम लिखा है, मैं गैर कौमों की तरफ से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समंदर के खतरों में, झूठे भाइयों से खतरों में, मेहनत और मुशक्क़त में, बार बार बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की हालत में, बार बार फाका कशी में, सर्दी और नंगे रहने की हालत में रहा हूँ। इन बैरूनी बातों के अलावा रोज़मर्रा का काम का बोझ और तमाम कलीसियाओं की खबरगिरी, कौन कमज़ोर है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, कौन ठोकर खाता है कि मैं नहीं चलता। तो यहाँ पर भी वो मुख्तलिफ़ शक्लों को बयान करता है और वो इन हालात के अंदर अपने काम में पूरी तरह मगन है। उसको पता है कि कोई भी चीज़ उसको यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। तो यीशु ने भी जो कुछ किया है ना, ये बाप की वफादारी में किया है, खुदा की मोहब्बत में ही किया है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील का 15वें बाब में यीशु ने ये कहा कि इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा है। और एक सूफी शायर इस ख्याल को इस तरह पेश करता है, कहना है कि आशिक आशिक हर कोई आखे ते आशिक बनदा मर के, आशिक आशिक हर कोई आखे ते आशिक बनदा मर के, ते जहर प्याला कोई नहीं पीता ते आशिक पीवे भर के। ये उसकी मोहब्बत है। वो किसी भी जहर को, सलीब को और किसी भी शक्ल में हो, वो उससे टकराने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि यीशु उसके साथ है। यीशु अपनी सलीब के जरिए हमको भी यही पैगाम देता है कि अपनी ज़िंदगी में देखें अपने इर्द गिर्द जो पहले से अपनी सलीबों पर लटके हुए हैं, यीशु उनकी सलीब को हल्का करने के लिए या फिर उनको जो पहले से मसलूब है उनको उनकी सलीबों से उतारने के लिए खुद मसलूब होता है। और यीशु की यही दावत है। शागिर्दी की सबसे पहली, बुनियादी और अहम तरीन शर्त यही है। यीशु कहता है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो खुद इनकारी करे और हर रोज़, ताख़ीर नहीं है, रखवा नहीं है, और हर रोज़ अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो शागिर्द होना चाहता है, जो यीशु के पीछे चलना चाहता है, जो यीशु की मोहब्बत को निभाना चाहता है, तो सलीब के बगैर नहीं है, सलीब के बगैर नहीं है। आज वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी में देखें, क्योंकि आज हम अमली तौर पर आज की इबादत में यीशु की सलीब को अपनी इज़्ज़त, अपनी ताज़ीम यकीनी तौर पर पेश करेंगे। खुदा हम सबको अपनी अपनी सलीबों को वफादारी से उठाने, निभाने का फजल बख्शे। वसीम हमारे खुदा उनके वसीले से।
आज मखसूस मुनाजातों का वक्त और इबादत में जगह है जिनको बोला गया है, वो तकरीबन 10 लोग आ सकते हैं और मुनाजात मिस्र से हम पढ़ सकते हैं। अजीज़ों, हम अब खुदा की पाक कलीसिया के लिए दुआ करें कि खुदा इसकी हिफाजत करे और तमाम रोए ज़मीन पर इसे सलामती और इत्तेहाद अता फरमाए। नीज़ हम इत्मीनान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करते हुए हर वक्त तसल्ली के साथ उसकी बंदगी करने पाएँ। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तूने अपने बेटे यीशु मसीह में सब कौमों के सामने अपना जलाल ज़ाहिर किया। अपनी कलीसिया के कामों की हदायत कर ताकि हम अपने ईमान के पाबंद रहें, हर वक्त तेरे पाक नाम को बढ़ाएं और दुनिया भर के लोगों को तेरी निजात की खुशखबरी में मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। पाक आज़म के लिए दुआ। अज़ीज़ों, हम अपने रूहानी पापा आज़म के लिए दुआ करें कि खुदा जिसे उसने चुना है अपनी पाक उम्मत की रहनुमाई के लिए सही सलामत रखे। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, तेरे कहने पर सब कुछ बना है। तू सब मसीहों का हुक्मरान है। अपनी शफ़क़त से हमारी रूहानी बाप को सलामत रख ताकि उसकी हदायत के साथ हमारा ईमान बढ़ता रहे और हम अपने पहले से ज़्यादा अच्छे मसीह बन जाएं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। कलीसिया के तमाम अरकान के लिए दुआ। जो हम अपने बिशप साहबान और कहनों की कुल जमात और बाकी खादमान दीन बल्कि सब मोमनों यानी सारी पाक उम्मत के लिए दुआ करें। है कादिर मुतलक अब्दी खुदा, तेरी तरफ से रूह कुद्दस कलीसिया की जानिब को औहदे से पकीदगी बख्शता है। हमारी सुन और हमारी सब की मदद कर ताकि हम अपने बुलावे के मुताबिक पूरी वफादारी के साथ तेरी खिदमत कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। उनके लिए जो बपतिस्मा पाने की तैयारी कर रहे हैं, अजीज़ों, हम उनके लिए दुआ करें जो बपतिस्मा पाने की तैयारी कर रहे हैं कि खुदा उनके लिए अपने रहम और मोहब्बत का दरवाज़ा खोले, नई पैदाइश के पानी के ज़रिए उनके गुनाह माफ़ कर दे और मसीह की ज़िंदगी में उन्हें शरीक कर दे। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, तो अपनी कलीसिया को हर वक्त नई औलाद से फलदार बनाता है। दीन की तलाश करने वालों के ईमान और समझ को तरक्की दे ताकि वो जिंदा पानी के हौज में नए मरे से पैदा हुआ और तेरे ख़ास फर्जंदों में शुमार किए जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। मसीहियों के इत्तेहाद के लिए दुआ। अजीज़ों, हम अपने उन भाइयों और बहनों के लिए दुआ करें जो हमारे साथ मसीह को मानते हैं कि मेहरबान खुदा अपने सब चाहने वालों को एक बनाए। ऐ कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, तू बिखरे हुओं को इकट्ठा करता है, तू इकट्ठा करके उनकी हिफाजत भी करता है। अपने बेटे की पैरवी करने वालों पर नज़र कर ताकि हम सब एक ही बपतिस्मा के ज़रिए मखसूस किए जाकर कामिल ईमान और मोहब्बत के बदन से भी एक हों। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। यहूदी कौम के लिए दुआ। अजीज़ों, हम यहूदी कौम के लिए दुआ करें कि वो हमसे पहले
खुदा का कलाम पाकर हमेशा तक उसके पाक नाम को अजीज़ जानते रहें और अपने अहद के पाबंद रहें। ए कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, तूने इब्राहिम और उसकी नस्ल के साथ निजात का वादा किया और उनसे अपना अहद भी बांधा था। मेहरबानी से अपनी कलीसिया की दुआएं सुन और पुरानी मीरास की कौम को निजात की भरपूरी में शामिल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए अजीज़ों, हम अपने मुस्लिम भाइयों के लिए दुआ करें और इस जहान में दिल की सफाई के साथ वाहिद खुदा की इबादत करने के बाद आखिरत में हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। अपने कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, तुझसे मोहब्बत करने वाला इब्राहिम इस बात पर आमादा था कि अपने ईमान और सच्चाई के इजहार में अपना इकलौता बेटा तक तेरे नाम पर कुर्बान करे। अपने रहमो करम से उसकी नस्ल को ये तौफीक अता कर कि तुझ वाहिद खुदा पर ईमान लाकर और हर बात में तेरे कहने के मुताबिक चलकर हमारे साथ अपनी निजात में शरीक हो। मसीह हमारे खुदावंद के सीधे से आमीन। उनके लिए जो खुदा को नहीं मानते, अजीज़ों, हम उनके लिए दुआ करें जो खुदा को नहीं मानते, वो अपने और ज़िंदगी की सच्चाई की वजह से उसे पाएँ और कबूल करें। ऐ कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, तूने हम सब को अपनी ही सूरत पर बनाया ताकि हम दिलो जान से तेरी तलाश करें और तुझ पाकर तसल्ली हासिल करें। बख्श दे कि सब लोग इस जहां की आजमाइशों और ठोकरों के बावजूद मसीहों की तर्ज ज़िंदगी देखकर तेरी मोहब्बत और रहमत को पहचाने और शादमानी के साथ तुझे सच्चे खुदा और हम सब के बाप को कबूल करे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से। तमाम सरकारी ओहदेदारान के लिए अजीज़ों, हम तमाम सरकारी ओहदेदारों के लिए दुआ करें कि खुदा उनके दिलों और दिमागों का हदायत करने वाला है और हम सब की खिदमत से फ़ायदा उठाकर इत्मीनान और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। ऐ कादर मुतलिक और अब्दी खुदा, तमाम इख्तियारात और हकूक़ तेरे ही हाथ में हैं और तू जानता है कि बनीनो इंसान को क्या दरकार है। अपने करम से उन पर निगाह कर जो हम पर हुकूमत करते हैं, ताकि तेरे सच्चे हाथ की हिफाजत से हर जगह दीन महफूज और वतन में अमन रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। अभी हम इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, तो पाक सलीब को उधर से सामने लाएंगे और इस दौरानिए में एक नारा है, देखो सलीब देखो, जिसने हमें बचाया। और आपका जवाब होगा, हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। मेहरबानी से सब खड़े हो जाएं। थोड़ा थोड़ा ज़रा आगे हो जाए, तस्वीर थोड़ा क्या उधर उधर
सलीब देखो जिसने हमें बचाया। हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया। हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। देखो सलीब देखो जिसने हमें बचाया। हमको बचा खुदाया, हमको बचा खुदाया। इधर दो पाक स्लीपें होंगी तो आप अपनी शख्सी अकीदत बोसा लेकर पाक स्लीप के साथ बांट सकते हैं। लंबे
तीसरे और आखिरी हिस्से में शामिल हो रहे हैं। आइए हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसे हम अपने कर्जदार को बख्श दे, तू हमारे कर्ज में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत खुदा यीशु मसीह की से इंतज़ार करता हूँ कि तेरे पाक खून की शराफत मेरे लिए फतवा जैसा नाबा इस्लाम बल्कि तेरी रहमत के मुताबिक मेरे जिस्म में रूह की हिफाजत करे और मेरे लिए दाहिनी अला साबित। ये है खुदा का बर्रा जो हम सब के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बड़े की ज़ियारत में बुलाए गए। मसीह खुदा उनका वतन हम सबको हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। प्यारे यीशु ने ओ साडे ते मेहरबान कीता रहम। प्यारे यीशु ने ओ साडे ते मेहरबान ओदी रहमत ते मेहरबानी दा मैं दसां बोल बयान। ओदी रहमत ते मेहरबानी दा मैं दसां बोल बयान। रोटी मेरी सूरत पाई लइयो
दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, जिसको तूने बनाया है। दिल मेरा ले ले जिसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले। जिसने लिए बनाया है, इसमें ये जिसके लिए बनाया है। बहुत साल है रात से दूर, बेपरवाही में पार करूं। बहुत साल है रात से लापरवाही में पार करूं। कल रात शब बेदारी की इबादत का वक्त 11 बजे है, तो पास का ही आग और पास का ही मोमबत्ती की बरकत हम सिस्टर्स के घर से करेंगे और उधर से फिर जुलूस की शक्ल में गिरजाघर में आएंगे। तो आपके लिए मोमबत्तियों का इंतज़ाम किया गया है। वक्त का ख्याल रखें और फिर इतवार के रोज़ ईस्टर वाले दिन इबादत का वक्त दोपहर 2 बजे का है।
तो मेहरबानी से इन दोनों में वक्त का खास ख्याल रखें ताकि हम दूसरे इलाकों में भी जो टाइम तय पा चुका है उसका लिहाज करना भी हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ऐ मेहरबान खुदा, हम पाक रस्मों के साथ तेरे बेटे की मौत को याद कर चुके हैं। उसका जी उठना हमारे लिए तसल्ली और उम्मीद का बायस है। अपने लोगों को बरकत दे, हमें मुआफ़ कर, हमारा ईमान मजबूत कर और हमेशा की निजात हमें अता कर, मसीह हमारे खुदा के वसीले से। हम उसी से हम अपने घरों को जा सकते हैं। और लग जाएगा हाँ आप तो करना हाँ